after days filled with knowledge sharing, collaboration, and inspiration, we have finally reached the validatory function of 2 days national workshop on research methodology and implementation of a statistical tool, jointly organized by IQSC Vivekanand Mahavidyalaya. It is privileged to have our special guest, Professor G.A. Ghanshyam sir with us. He is a dynamic personality known for his inspiring leadership and remarkable contribution to the higher education. Professor Ghanshyam serves as a principal and joint director cum state nodal officer NEP 2020 at the Directorate of Higher Education, Chhattisgarh, Raipur. He is an extensive academic and administrative career with over 30 years of teaching experience. Dr. Ghanshyam has made significant contribution to research and scholarships, having published 102 research papers in national and international journals and authored 14 books. He was successfully guided 7 PhD scholars and 3 MPhil candidates. He is recipient of associateship from the Indian Institute of Advanced Studies, Shimla, and holds prestigious fellowship including Fellow of Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Fellow of Guild of Independent Scholars, Social Science, Fellow for the International Universities of Humanities. As an academic speaker, Dr. Ghanshyam has delivered over 240 lectures as a resource person, keynote speaker, or speaker, and has conducted more than 200 workshops focusing on language, literature, and soft skills. He has been associated with the NEC accreditation process for the past 15 years. When he is assumed to role OSD at the Directorate of Higher Education in September 2020, only 36 government colleges in Chhattisgarh were NEC accredited. Under his leadership, that number grown up to 201 accredited colleges, reflecting his effective strategic initiative in implementing quality benchmark. Dr. Ghanshyam also serves as an external expert for PhD evaluation in the several universities across India. He is a founder of ISPELL and IFEEL, Forum of English Education and Literature, both of which promote scholarly and academic excellence in English studies. He currently serves as a member secretary of the State Task Force for the implementation of NEP 2020 in the Chhattisgarh. Welcome you, sir. Now I would like to invite Dr. Manoj Mishra, sir, to kindly welcome our special guest by bouquet. Thank you, sir. Now, I humbly invite Dr. Ghanshyam, sir, kindly address the gathering and share his valuable thoughts with us. बहुत बहुत धन्यवाद मंचस्थ इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा जी, साथी में उपस्थित चंद्राकर जी चौरसिया जी, आप सभी फैकल्टी मेंबर्स और शोधार्थीगण। कल शायद करीब 12 बजे की बात होगी, 11:30 या 12 बजे की बात, मिश्रा जी का फ़ोन आया था जब मैं कुंडा गांव में था। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक 2 दिन की कार्यशाला है और उसका समापन समारोह है, उसमें आपको आना है। तो मैंने पूछा था ये किस संबंध पे है, तो उन्होंने कहा था शोध और शोध की विभिन्न जो गतिविधियां हैं उनसे लेकर ये कार्यशाला है।
जब आज आकर पूछा तो उन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिकल जो टूल्स हैं उनका किस तरीके से हम रिसर्च में इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज़ करेंगे, उस पर कार्यशाला है। तो मुझे लगा कि एक निरक्षर व्यक्ति को साक्षर लोगों के बीच में बुला लिया गया है और वो भी समापन समारोह में। तो यदि समापन निरक्षर व्यक्ति के साथ साक्षर व्यक्तियों का होगा तो वो समापन कैसा होगा। तो मैं इसी बात पे सोच रहा था और बैठे बैठे जब मैं वो जो फूल देकर मुझे स्वागत किए उसको जब देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये खिले हुए चेहरे मेरे बोलने से मुरझा ना जाएं। तो बहुत सारी बातें थी और शोध को लेकर बातें थी को, इसलिए एक शोधार्थी होने के नाते, और हम सभी शोधार्थी होते हैं, जब व्यक्ति पैदा होता है तब से वो शोध करता ही रहता है और अनायास उसकी शोध की जो गतिविधियां हैं वो उसके अंतिम काल तक लगातार चलती रहती हैं। ये अलग बात है कि उस शोध में वो शोध पत्र नहीं लिख पाता है या कहीं पर जाके अपने शोध के बारे में बता नहीं पाता है, लेकिन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज़ का शोध अवश्य करता रहता है। और जब हम शोध की बात करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो दो भागों में विभक्त है, एक राइट ब्रेन है और एक लेफ्ट ब्रेन है। जो लेफ्ट ब्रेन है हमारा वो केवल चीज़ों को आत्मसात करने का, रटने का, ये सब काम करता है और उसी से हम बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन हम कभी राइट ब्रेन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाए। राइट ब्रेन होता है एनालिटिकल थिंकिंग के लिए, या राइट ब्रेन होता है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, राइट ब्रेन होता है कि आपकी कम्युनिकेटिव एबिलिटी कैसे डेवलप होगी, ये सारा का सारा काम राइट ब्रेन करता है। और जिनकी वक्तृत्व कला बहुत अच्छी है, जिनकी कम्युनिकेटिव एबिलिटी बहुत अच्छी है, जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, उनका राइट ब्रेन बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि राइट ब्रेन इन चीज़ों को करता है। और जितने आर्टिस्ट होते हैं जिनमें भी क्रिएटिविटी होती है, रचनात्मकता होती है, वो सब राइट ब्रेन का ज़्यादा उपयोग करते हैं, वहाँ पर फिर लेफ्ट ब्रेन काम नहीं करता। लेकिन जब हम बच्चों को बोलते हैं कि इसको ये करना है, इसको ये करना है, और उसको समझ में नहीं आता और बच्चा जब रटने का प्रयास करता है तब उस समय लेफ्ट ब्रेन फंक्शन में आता है, लेफ्ट ब्रेन उसको पूरा का पूरा रटता है। रचनाधर्मिता जो है वो लेफ्ट ब्रेन की नहीं बल्कि राइट ब्रेन की है, इसीलिए हर एक व्यक्ति में रचनाधर्मिता अवश्य होती है। हम जब बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाने का प्रयास करते हैं और ख़ास करके अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट सिखाने का प्रयास करते हैं, अंग्रेजी के विद्यार्थी होने के नाते, तो हम एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा पहले खींचते हैं। एक रेखा ऐसी जाती है ऊपर तक, फिर वो रेखा नीचे उतरती है, उसके बाद एक समांतर रेखा उसमें खींचते हैं और बच्चे को बोलते हैं क्या बना, ए बना। तो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा से प्रारंभ होती है और जब हम उस वर्णमाला का अंत करते हैं तो वो भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा से होता है। एक रेखा समांतर खींचती है, फिर एक रेखा ऐसी आती है, फिर एक रेखा समांतर खींचती है, तो वो भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में समाप्त होती है। मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी की वर्णमाला टेढ़ी मेढ़ी रेखा से प्रारंभ और टेढ़ी मेढ़ी रेखा से अंत। दूसरे परिप्रेक्ष्य में इसको सोचिएगा, जब बच्चे को आप गोद पे लेते हैं तो बच्चा तुरंत आपके पॉकेट पे क्या रहता है, पेन निकाल लेता है, पेंसिल निकाल लेता है और दीवार पे या कहीं पर भी वो जो चित्र बनाता है या कुछ भी बनाता है उसमें पहले बनाता क्या है, ओ बनाता है। ओ जब बनाता है बच्चा तो ये बताने का प्रयास करता है कि दुनिया, और मैं अंग्रेजी के विद्यार्थी के नाते मैं सोचता हूं कि उसने तो अल्फाबेट बनाया, कौन सा, ओ। अब उसकी नैसर्गिक प्रतिभा, नैसर्गिक रचनाधर्मिता है ये कि वो अपने आप ओ बना लेता है, जिसमें किसी शिक्षक की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी, किसी माँ की आवश्यकता भी कभी पड़ी नहीं और बच्चे ने गोला बना लिया। तो क्यों नहीं हम उस गोले से ही उसको अल्फाबेट सिखाना प्रारंभ करें। उसकी रचनाधर्मिता एक गोला बनाने की है तो उस गोले के ऊपर को मिटा दीजिए, बचा क्या, यू। उसके नीचे में एक डंडी खींच दीजिए, क्या बन गया, वाई। उस गोले को आप इधर को मिटा दीजिए, क्या बन गया, सी। उस गोले को इधर को मिटा के एक लकीर खींच दीजिए, क्या बन गया, डी। उस गोले का नीचे को मिटा के समांतर रेखा खींच दीजिए, क्या बना, ए। दो गोला बना दीजिए और इस तरफ को मिटा के लकीर खींच दीजिए, क्या बन गया, बी। आप केवल गोले को थोड़ा सा मिटा के उस पर थोड़ा सा जोड़ते जाइए, सारे के सारे अल्फाबेट आपके किसके बन जाएंगे, अंग्रेजी के। लेकिन हम उस बच्चे को मार पीट के शुरुआत से ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा और ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा, मतलब हम ईश्वर के द्वारा प्रदत्त रचनाधर्मिता को नेस्त नाबूद करने वाले लोग हैं।
हम और कुछ नहीं करते। हम बच्चे को एक परंपरागत तरीके में ढालने का प्रयास करते हैं। उसकी शोधोन्मुखी प्रवृत्ति जो होती है उसमें हम पूरे तरीके से, आपके महाविद्यालय जब मैं अंदर आया तो 2 आने के पहले क्या थे, हाँ, स्पीड ब्रेकर थे। तो हम वो हैं जो बच्चे की रचना धर्मिता में स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। उसकी रचना धर्मिता जो फ्लो होती रहती है, जो निरंतर प्रवाहित होती रहती है, उसमें अवरोध उत्पन्न करने का काम हम करते हैं। और हम शान से कहते हैं कि हम टीचर हैं। तो टीचर किस बात का, जो रचना धर्मिता का साथ न दे। अब यदि बच्चे को समझ में नहीं आ रही है कोई चीज, तो बच्चा करता क्या है, रट लेता है। रटता वही है जो उसको समझ में नहीं आता, और जो समझ में आता है उसको रटने की कतई आवश्यकता ही नहीं है। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन हम ठूस ठूस के बच्चे को उस आंग्ल भाषा के माध्यम वाले विद्यालय में भेजते हैं। भले माहौल, घर पे माहौल किसी प्रकार का अंग्रेजी का नहीं है, माता पिता पूरे परिवार को अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, लेकिन कॉलर शान से खड़ा होता है और कहता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ता है। उसका यदि अंक आते हैं, नंबर आते हैं, प्रतिशत आते हैं, परसेंटेज आते हैं, तो उससे हम उसकी बुद्धिमत्ता को नापते हैं। परीक्षा जैसे ही समाप्त होती है, हम बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हारा कितना प्रतिशत आया। कल रिजल्ट निकला है 10th बोर्ड का, उसमें जो जो बच्चे 99, 98, 95 पाए होंगे वो यहाँ होंगे, और जो बच्चे यदि 60, 65, 58 पाए होंगे, और मेरे जैसे बच्चे जो जिंदगी में कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आए, उन बच्चों का हश्र क्या हुआ होगा। तो मैं अपने आप को उन बच्चों में रख के जब तौलता हूं तो मुझे वो पहाड़ दिखता है, 99%, 98%। इतना पाए कैसे होंगे। मैं पूरे अपने प्रतिशत को जोड़ता हूं तो भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो एक परीक्षा में वो बच्चा इतना प्रतिशत पा कैसे गया। तो उन बच्चों में ये बच्चा कैसा। तो क्या समाज में केवल बुद्धिमत्ता गुणक ही सबसे महत्वपूर्ण है? क्या व्यक्ति जो 99, 95, 98% पाता है वही सफल है? 55, 58, 57 पाने वाला सफल नहीं है? मैं 57.75 MA अंग्रेजी में पाया था, उससे ज्यादा मैं पाया नहीं, और मैं सफल हूं। और मैं अपने जीवन के 30 साल इस उच्च शिक्षा विभाग में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं, और मैं पूरे तरीके से सफल हूं। तो कहां गई बुद्धिमत्ता? आपके मोहल्ले में एक छोटू होता है जिसको आप कहते हैं ये छोटू किसी काम का नहीं है, पढ़ाई में एकदम कमजोर, लेकिन किसी के घर पे मृत्यु हुई, काठी में जाना है तो बांस लेने के लिए जाएगा कौन? छोटू। सब्जी लेने के लिए उस झोले को लेके जाएगा कौन? छोटू। सिलेंडर लेना है तो सिलेंडर में पीछे बैठ के सिलेंडर को लाने वाला काम कौन करेगा? छोटू। कुछ भी नहीं हो रहा है तो सब जगह काम आने वाला छोटू। आप अपने बच्चे को कभी बोल के देखिए, वो कहेगा मैं नहीं आऊंगा या मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे पढ़ना है। और छोटू को पढ़ना नहीं है, छोटू को गढ़ना है। छोटू का सामाजिक गुणक सबसे ज्यादा अच्छा होता है, जिसको आप सोशल कोशेंट कहते हैं। छोटू का इमोशनल कोशेंट बहुत अच्छा होता है, जिसको आप भावनात्मक गुणक कहते हैं। लेकिन छोटू का एक पक्ष कमजोर होता है, जो इंटेलिजेंट कोशेंट है या बुद्धिमत्ता गुणक है, वो कमजोर होता है। लेकिन हमारी एनालिसिस ये कहती है कि जो परसेंट ज्यादा लाया वो सबसे अच्छा, और जो परसेंट कम लाया वो किसी काम का नहीं। तो हम इस तरीके की मेंटालिटी को जो चेंज करना है, वही हमारा रिसर्च है। ये रिसर्च इस तरीके से होना चाहिए कि ये नहीं कि रिसर्च हमारा एक वॉल्यूमनस वर्क है जो केवल हम अपने थीसिस लिखते समय लिखे हैं, और हमारी गाइड ने उसको केवल एक धर्म के नाते उसको पढ़ा और उसको करेक्शन किया, और जिन 2 लोगों के पास हम भेजते हैं उन्होंने केवल उसको पढ़ा और उसके कुछ पॉइंट्स लिखे, वाइवा हुआ, PhD अवार्ड हुई, नाम के सामने में DR लिखा और कर्तव्यों की इतिश्री, वो थीसिस कभी निकल कर भी बाहर नहीं आई। तो ऐसी थीसिस का क्या मतलब, यदि जो समाज के लिए उपयोगी ना हो, जो हमारे लिए उपयोगी ना हो, जिसको हम कभी पलट के पन्ने भी देख ना पाए। इसीलिए हमें ऐसे शोध करने की आवश्यकता है जो समाज को सक्षम, समाज को सुदृढ़, समाज को एक निरंतर गति देने वाला शोध होना चाहिए। और हम उन शोधों को, इसलिए शोध में यह भी कहा जाता है कि रिसर्च का प्रॉब्लम जो है उसको जिस दिन आप फाइंड आउट कर लेते हैं, उस दिन आपके शोध का आधा प्रतिशत काम, यदि 1% मानता हूं तो आधा तो काम हो ही जाता है। और वो जो रिसर्च का प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करना ही आधी आपकी रिसर्च है।
कई बार बच्चे आते हैं, मैं पूछता हूं किस पे रिसर्च करना चाहते हैं, सर आप जो बोल दो उस पे कर लेंगे। मैं बोला फिर आपकी मेरी जरूरत क्या है, आप तो सर्वज्ञ हैं। यदि मैं बोला इस पे शोध कर लो तो आप तो शोध कर लिए, तो आपको ना गाइड की आवश्यकता है ना मेंटोर की आवश्यकता है, आप तो अपने आप में सर्वज्ञ हैं। फिर एक एक कली खुलती जाती है। इसलिए जो रिसर्च है वो पेरिफेरी से लेकर सेंटर तक पहुंचने का माध्यम है। हम रिसर्च में केवल और केवल उस विषय वस्तु को लेकर रिसर्च कर पाते हैं, लेकिन उसकी पेरिफेरी में कभी नहीं जाते। हमें पेरिफेरी से लेके सेंटर तक आना है। और इसीलिए आज के ज़माने में हम में वो नैतिकता बिल्कुल नहीं रही। हम नैतिकता से कोसों दूर हो गए हैं। तभी हमारे लिखी हुई चीज को एक सॉफ्टवेयर जो है वो चेक करता है और कहता है कि इसमें इतना % क्या है, प्लेजरिज्म है, और कितना % अधिकतम होना चाहिए, 10%। उससे ज्यादा हुआ तो रिवाइज करिए। मतलब आपकी नैतिकता को आपके द्वारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर चेक कर रहा है। इससे बड़ी अनैतिक काम और क्या हो सकता है। मतलब हमें नैतिकता ही नहीं है, हमें रचना धर्मिता ही नहीं है। हम लिखना भूल गए, हम सोचना भूल गए। हम केवल और केवल ज्ञानार्जन नहीं करते, हम केवल और केवल इंफॉर्मेशन सीकर हैं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हैं, और कुछ नहीं। यदि मुझसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक कौन, तो मैं कहूंगा प्रोफेसर गूगल और डॉक्टर विकिपीडिया। ये दुनिया के 2 बेहतरीन टीचर हैं। जो मैं आप उत्तर नहीं दे पाएंगे वो सारा का सारा उत्तर प्रोफेसर गूगल और डॉक्टर विकिपीडिया दे देगा। आप एक उत्तर देंगे वो अनेक उत्तर दे देगा। आप एक पन्ना देंगे वो 10 पन्ना खोल देगा। फिर हमारी आवश्यकता क्या। आज के इस परिवेश में जहां पर आप एआई का इस्तेमाल करते हैं, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें नेचुरल इंटेलिजेंस कहां गई। वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाला हमारा नेचुरल इंटेलिजेंस है वो कहां लुप्त हो गया। हमें उस नेचुरल इंटेलिजेंस को खोजने की जरूरत है। रिसर्च उस बारे में करने की जरूरत है कि हमारा नेचुरल इंटेलिजेंस जो इतना वृहद एआई को जन्म दे सकता है, तो उसमें कितनी बड़ी बात होगी। एक कक्षा थी जिसमें टीचर ने कहा कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखना है। तो सारे बच्चों ने लिखना प्रारंभ किया। इन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा, इन्होंने लिखा। और ये साहब जो थे ये वीक्षक थे, इन्विजिलेटर थे, ये जैसे ही गए। और वीक्षक किसी भी विषय का हो, बच्चे को यह लगता है वीक्षक मतलब टीचर, और टीचर मतलब सर्वज्ञ, वो हर किसी को जानता है। और जैसे ही टीचर पास आया, ये हाथ ऊपर हो गया ताकि टीचर न देखे कि हमने लिखा क्या है। वो टीचर ने हाथ उठाया, फिर उसने ऐसा किया। फिर टीचर को लगा कि नहीं, कुछ तो अलग है। वो टीचर उठा के सामने में ले आया और उस बच्चे से कहा, लड़की से, कि अब तुम बोलो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड क्या है। तो वो जब बोलना प्रारंभ की तो बाकी सब बच्चे हंसने लगे। तो टीचर ने पूछा आपने क्या लिखा। तो इन्होंने कहा हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। इनसे पूछा, इन्होंने कहा पीसा की मीनार। इनसे पूछा, इन्होंने कहा ताजमहल। अब कहा इस बच्चे से पूछा जाए। तो उसने पहला लिखा था नोज, दूसरा लिखा था टंग, तीसरा लिखा था आई, चौथा लिखा था टंग, पांचवा लिखा था स्किन। टीचर, सारे बच्चे हंसने लगे। टीचर ने कहा ये क्या है। तो उसने कहा आपने कहा था 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखना है, आपने ये नहीं कहा था कि कौन से वंडर्स लिखने हैं। ये सारे बच्चों ने जो वंडर्स लिखे हैं वो मैन मेड हैं, और मैंने जो वंडर्स लिखे हैं वो गॉड क्रिएटेड वंडर्स हैं। तो हम कौन से वंडर्स की बात कर रहे हैं। हम अपने आंखों का, अपने कानों का, अपनी जिह्वा का, अपने अंदर में स्थित वो जो मानस है उसका यदि उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, और सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में जिसको आप आईसीटी कहते हैं, इसमें हम केवल और केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हैं, इंफॉर्मेशन सीकर हैं, इंफॉर्मेशन गैदरर हैं, लेकिन नॉलेज प्रोड्यूसर और नॉलेज सीकर नहीं हो पाए। रिसर्च हमें नॉलेज सीकर बनाता है, रिसर्च हमें नॉलेज प्रोवाइडर बनाता है, रिसर्च हमें नॉलेज को ट्रांसमिट करने वाला बनाता है। इसलिए रिसर्च की आवश्यकता है। रिसर्च की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि कहीं कहीं से उठा के कर दिया। CNP मतलब कॉपी एंड पेस्ट। मैक्सिमम रिसर्च CNP के हो रहे हैं, और प्लेजरिज्म जब सॉफ्टवेयर चेक करके बताता है तो हम केवल और केवल उस सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को चेंज कर देते हैं, बाकी सब वही रहता है। प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर भी मान लेता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, लेकिन हमारी रचना धर्मिता कहाँ रह गई, हमारे जो एथिक्स हैं वो कहाँ रह गए। और इसलिए एथिक्स जो है वो खुद कहता है, एथिक्स में से आप ई को हटा दीजिए, बचा क्या। एथिक में ई को हटा दीजिए, बचा क्या, थिक। थिक मतलब मोटा।
एथिक्स इतना मोटा है कि हम उसको उपयोग ही नहीं कर पा रहे। हर मामले में हम एथिक्स में कमजोर होते चले जा रहे हैं। रिसर्च हमें एथिक्स की ओर ले जाने का प्रयास करता है। रिसर्च हमें यह बताता है कि जो खोजी गई चीज है उसमें और क्या खोजा जाए। यदि मैं कोई फिल्म देखने जाता हूं तो उस फिल्म में मुझे एक पात्र या एक किरदार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हो सकता है इनको उस फिल्म की म्यूजिक बड़ी अच्छी लगती है, इनको सिनेमेटोग्राफी बड़ी अच्छी लगती है, इनको उसकी कास्टिंग बहुत अच्छी लगती है। वो इसलिए जाती है कि वो उनका पसंदीदा डायरेक्टर है, वो इसलिए जाती है कि उनका पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर है। हर व्यक्ति की फिल्म को आकलन करने की अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी चाहत है। वो हमारी रचना धर्मिता के ऊपर है। यदि आप किसी को कोई चीज लिखने दे दें और कहें कि एक विषय वस्तु देकर इस पे लिखा जाए, तो वो अपनी रचना धर्मिता का उपयोग करता है। और आज के इस युग में जो कि मोबाइल का युग है, हम हर चीज को एक और सॉफ्टवेयर है जिसमें डाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं GPT, और उसके सामने में क्या है, वो हमको पूरा चार्ट डाला है। वो चार्ट GPT हो गया। हम उसको इतना चार्ट लिए हैं कि रिसर्च पेपर भी हमारा किस में बनने लग गया है। इसलिए रिसर्च इस बात का उल्लेख करता है कि हमारी रचना धर्मिता को हम कितना आगे ले जा पाते हैं, सोच को कितना आगे ले जा पाते हैं। एक अंग्रेजी के बहुत प्रख्यात एसेइस्ट थे फ्रांसिस बेकन। उन्होंने लिखा था ऑफ स्टडीज में, रीडिंग मेकeth अ फुल मैन। यदि आप रीड करते हैं, जो भी मिला उसको रीड करते हैं, चनाचूर गरम भी खा रहे हैं, वो जिस कागज में मिला है, चनाचूर गरम खाने के बाद वो कागज में भी कोई ना कोई जानकारी होगी, उसको भी पढ़ लेते हैं। या और भी कुछ, जितनी भी किताबें आपके पास आती जाती हैं, चाहे वो विज्ञान की हो, कला की हो, वाणिज्य की हो, या आप संगणक की हो, कंप्यूटर की हो, किसी की भी हो, पढ़ते चले जाते हैं तो आपका ज्ञानार्जन होने लगता है। तो रीडिंग मेकeth अ फुल मैन। फिर आगे कहते हैं कॉन्फ्रेंस मेक्स अ रेडी मैन। हम कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि मेरे विचार दूसरों तक संप्रेषित हो सकें और दूसरों के विचार से मैं अपने आप को भी आत्मसात कर पाऊं, इसलिए हम कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन कॉन्फ्रेंस केवल और केवल यह होकर रह गया कि कॉन्फ्रेंस में शुरुआत में हम आते हैं, अपने साथ 10 लोगों का पंजीयन कराते हैं और पहले सत्र में रहते हैं उद्घाटन में, और उसके बाद में जब पेपर रीडिंग का सेशन आता है, वही लोग बचते हैं जिनको पेपर रीड करना होता है। श्रोता के नाम पे एक व्यक्ति नहीं बचता और सर्टिफिकेट बढ़ जाती है 200 की, और वहां 2 लोग नहीं रह पाते। ये हमारा कॉन्फ्रेंस हो गया है। तो कौन सा रिसर्च है? तो कॉन्फ्रेंस मेक्स रीडिंग मेकeth अ गुड मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन। तो कॉन्फ्रेंस हमें रेडी मैन बनाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कॉन्फ्रेंस कर करके इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको आप कहीं पर भी किसी भी दिन किसी भी विषय पर बोलने के लिए बुला लीजिए, वो व्यक्ति बोल सकता है, क्योंकि इतना कॉन्फ्रेंस वो कर चुका होता है। फिर आगे कहता है फ्रांसिस बेकन, राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। तो यदि किसी व्यक्ति को एग्जैक्ट बनना है तो किससे बनते हैं? राइटिंग। और इसीलिए हम कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान कहते हैं। तो राइटिंग जब हमको एग्जैक्ट मैन बना सकता है, तो राइटिंग जो है वो सबसे कठिन स्किल है, सबसे कठिन विधा है। किसी भाषा को भी सीखने में 4 विधाएं होती हैं। जो भी भाषाएं आप सीखते हैं, इसकी सबसे पहली विधा होती है कोई भी भाषा को सीखने की, कौन सी? लिसनिंग। आप पहले सुनते हैं। हिंदी बोल पाते हैं क्योंकि हिंदी आप लगातार सुनते हैं। अंग्रेजी भी तिहारू और खोरबहरा बोल पाता है क्योंकि वो भी अंग्रेजी सुनता है। वो भी इसको उठा के बोलता है स्मार्टफोन। पढ़ा नहीं है, अंगूठा छाप है, लेकिन बोलता क्या है? स्मार्टफोन। और उसमें वो लकीरें नहीं आती तो क्या बोलता है? सिग्नल या टावर नहीं है। और सामने में वो लगाना है तो क्या बोलता है? स्क्रीन गार्ड। और पीछे में लगाना होता है बोलता है कवर। और कॉल नहीं होता है तो क्या बोलता है? बैलेंस नहीं है। तो फिर जाके क्या करवाता है? रिचार्ज। इतना तो हमारे बच्चे भी बोलते हैं, PhD वाला भी बोलता है। उसमें और खोरबहरा में अंतर क्या है? फिर यदि सुन सुन के खोरबहरा ने इतनी अंग्रेजी बोल ली, तो हमारे बच्चों ने तो PG करने के बाद भी इतनी ही अंग्रेजी सीखी। इसीलिए हमें वो स्तर को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए लगातार हमें रिसर्च करने की जरूरत है। और भारत में रिसर्च का पक्ष बहुत कमजोर हुआ है और लगातार कमजोर हुआ है। और कमजोर खुद कहता है, कमजोर को उल्टा पढ़िएगा, जोर हमने कम लगाया है, इसलिए हम कमजोर हैं। हम पैदाइशी कमजोर नहीं हैं। हमने किसी भी चीज को जानने में, सुनने में, समझने में, गढ़ने में, पढ़ने में जोर कम लगाया है, इसलिए हम कमजोर हैं, वरना हम कमजोर तो है ही नहीं।
और जिस दिन हम जोर लगा देंगे उस दिन हम कमजोर रहेंगे नहीं। कमजोर खुद ही ये कहता है, जैसे इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल, वैसी कमजोर खुद कहता है कि आपने जोर कम लगा। हमारा जोर रिसर्च के प्रति, हमारा जोर शोध के प्रति बहुत कम है। हमें शोधोन्मुख गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालयों में इस तरीके के आयोजन प्रति सप्ताह करने चाहिए। कम से कम 1 से 2 घंटा बैठ के हम सभी को रीडिंग, कॉन्फ्रेंस और राइटिंग करना चाहिए। और इसीलिए भाषाओं को सीखने के लिए सबसे पहले यदि लिसनिंग है तो लिसनिंग के बाद क्या आती है? स्पीकिंग। इसलिए बच्चा जब स्कूल जाने को तैयार होता है तो बच्चा सुन भी सकता है और बच्चा बोल भी सकता है। और बच्चे को हम स्कूल किस लिए भेजते हैं? किसके लिए? जब बच्चा स्कूल से आता है तो आप बच्चे से क्या पूछते हैं, ये बता दीजिए। स्कूल में क्या कैसी चल रही है? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? आप हमेशा पढ़ाई लिखाई बोलते हैं, कभी भी आपने लिखाई पढ़ाई कहा क्या? क्यों नहीं कहा? हर कोई पूछता है पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, लेकिन कोई नहीं पूछता लिखाई पढ़ाई कैसे चल रही है, क्योंकि वो क्रम है। पहले लिसनिंग है, दूसरा स्पीकिंग है, तीसरा रीडिंग है और चौथा राइटिंग है। और चौथा राइटिंग है, मतलब सबसे लास्ट स्किल यदि कोई सा है तो वो कौन सा है? राइटिंग। इसलिए बेकन ने कहा था राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। आपको एग्जैक्ट बनना है तो राइटिंग, आपकी रिसर्च की राइटिंग जो पहले दिन आपने लिखी थी, 30वें दिन पढ़िएगा आपको खुद लगेगा पहले दिन की राइटिंग इमेच्योर है। क्या मैंने लिखा था इसको? क्योंकि 30 दिन में आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ गई है। उन 30 दिनों के बाद आप 1 साल बाद पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये रिसर्च तो बहुत ही सुपरफिशियल है, इसमें तो और डेप्थ में जाने की जरूरत थी। उस रिसर्च के पूरे आर्टिकल को या थीसिस को 5 साल बाद पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये तो वाहियात बनी हुई है थीसिस, इसमें मुझे पीएचडी मिली, इससे बेहतर तो आज मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो हमें अपनी खुद की चीजें समझ में आने लगती है कि हमारा स्तर बढ़ता जा रहा है और जिस स्तर पे हमने लिखा था वो स्तर कहां है। तो हमें वो रिसर्च के स्तर को आगे ले जाने की जरूरत है। और इन विद्यार्थियों में, जो कि हम सीधा आते हैं विद्यार्थियों में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके रिसर्च की बात करते हैं, हमें तो बच्चों से रिसर्च की बात जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर में आए वहीं से उसको रिसर्च की बात करनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसीलिए 3 और 4 वर्ष की है, जिसमें चौथा वर्ष जो है वो किसके लिए है? रिसर्च के लिए है या फिर ऑनर्स के लिए है। जिनका 75% या उससे ऊपर का है वो रिसर्च में जा सकता है। तो हमें पहले सेमेस्टर से ही विद्यार्थियों के मन में शोधोन्मुख प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार का हुनर देना चाहिए। और इसलिए हर कोई रिसर्च नहीं कर सकता। रिसर्च करने वाला व्यक्ति भी अलग होगा, उसमें उसको जूझना पड़ेगा। उसमें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत जो होगी वो पेशेंस की होगी, धैर्य की होगी, लिखने की होगी, समझने की होगी, गढ़ने की होगी, बूझने की होगी, जानने की होगी। और वो माइंड जो है वो हमेशा हर चीज में कुछ खोजता रहे, वो होना चाहिए। मैं कहीं पढ़ रहा था व्हाट इज रिसर्च, तो आपने बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी होंगी रिसर्च की। तो उसमें एक जगह लिखा था whatever that you see between the 2 lines is research। 2 रेखाओं के बीच में या 2 लाइन जो लिखी हुई है उसके बीच में जो लिखी रहती है वो रिसर्च है। तो किसी ने मुझे कहा कि 2 लाइन के बीच में तो क्या रहता है? खाली रहता है और सफेद रहता है, उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। वही खोज करना ही रिसर्च है, सर्च करना है कि उन दोनों, रीड बिटवीन द लाइन्स हम अंग्रेजी में कहते हैं, कि दोनों रेखाओं के बीच में जो लिखा है उसको पढ़ो। और जो व्यक्ति उसको पढ़ने का अपने में मादा रखता है वो व्यक्ति रिसर्च कर सकता है। इसलिए हर व्यक्ति रिसर्च करे ये कहीं पर भी आवश्यक नहीं है। तो हमें उस तरीके के टेम्परामेंट के लोगों को लाने की जरूरत है। ये कार्यशालाएं हमारी स्किल को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, हमारी स्किल को रीब्रश करने का काम करती हैं, स्किल्स पे जो धूल जमी हुई है उसको हटाने का प्रयास करती हैं। स्किल नहीं है तो उनमें स्किल को इंस्टिल करने का प्रयास करती हैं। वो इसलिए करती हैं कि यदि स्किल नहीं होगा तो एस को हटा दीजिए, क्या बचा? सोसाइटी हमें किल कर देगी। और के को हटा दीजिए, हम सभी क्या हो जाएंगे? इल मतलब बीमार। जो बीमार होता है उसी को सोसाइटी किल करती है, क्योंकि उसके पास होता नहीं है स्किल। तो हमें स्किल बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था कि हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई हुनर या कोई ना कोई विधा आनी चाहिए। भले बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन कोई ना कोई कौशल उसके पास होना चाहिए। कौशलोन्मुख भारत की परिकल्पना हमें आनी चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने SEC रखा। क्या है वो? स्किल एनहांसमेंट कोर्स। तो हमें, सर इसको दीजिएगा, नहीं ये सर
आप दोनों बैठ जाइए। ये कौन सा फोन है? कौन सा फोन बोलते हैं? स्मार्टफोन। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश से मैंने नाम पूछा, लेकिन ओम प्रकाश ने अपने नाम के साथ स्मार्ट नहीं लिखा, या स्मार्ट नहीं कहा, लेकिन इसको आप क्या बोला? हमने बनाया इसको और ये स्मार्ट हो गया, लेकिन हम स्मार्ट नहीं हो पाए। हमें स्मार्ट बनने की जरूरत है, और स्मार्ट में से एस हटा दीजिए, बचा क्या? मार्ट। मार्ट मतलब सीजी मार्ट खुला है, बाजार। और मार्ट में से एम हटा दीजिए, बचा क्या? हर एक विद्यार्थी, हर एक व्यक्ति के पास क्या है? आर्ट है। और जिस दिन उसके आर्ट को आप पहचान लेंगे जौहरी के रूप में, जिस दिन उसके आर्ट को आप आयाम देने लगेंगे, जिस दिन उसका आर्ट आप कमरे से निकाल के बाहर ले आएंगे, जिस दिन उसके आर्ट पे वो कमाना प्रारंभ कर देगा, तो उस दिन उसका आर्ट वहां से निकलकर कहां पहुंच जाएगा? मार्ट में। और जिस दिन उसका आर्ट निकलकर मार्ट में पहुंचेगा, वो बच्चा अपने आप क्या बन जाएगा? हमें वो करना है। तो रिसर्च जो है वो हमारी अपनी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी है, आर्ट है हमारे अंदर। हर एक व्यक्ति का दिए गए विषय पर सोच अलग अलग है, इसलिए हम कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने। हर एक जो दिमाग है, हर एक सर जो है, उसकी सोचने की क्षमता अपार है। हर बार आप नया मोबाइल चेंज करते हैं, और सैमसंग कहता है, उसका टैगलाइन है व्हाट्स नेक्स्ट, अगला क्या, अगला क्या। मेरे पास ये एप्पल जो है ये 16 का है, अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है 17, राइट। इतने सालों की सर्विस के बाद पहली बार मैं ये बहुत हिचकते घर में कई बार पूछ के मैंने 16 लिया। घर वालों ने खूब कहा इतना महंगा लेने की क्या जरूरत है, लेकिन जिन बच्चों को पढ़ाते हैं हम, उनके पास तो 16 प्रो रहता है, और हम तो 16 लेके चलते हैं। सर आपका तो छोटा है, मेरा तो देखिए कितना बड़ा प्रो रहता है उसके पास। मैंने कहा प्रो में और इसमें अंतर क्या है? सर इसका वो जो क्या कैमरा के अलावा, हाँ क्या बोले सर आप? हाँ, स्टोरेज बढ़ जाता है, राइट। कोई भी कितना स्टोरेज दे सकता है? 1 TB, 2 TB, 10 TB, 100 TB, 1000 TB। लेकिन जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त टीबी है यहां पर, जो इतनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, वो तो कोई मोबाइल नहीं दे सकता। लेकिन हमें उस पर ज्यादा विश्वास रहता है, हमारे इस मेमोरी पे कभी विश्वास नहीं रहता। तो हम उस युग में जी रहे हैं जहां एक बार आप कहीं जाकर आ गए, दोबारा सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट्स उसी जगह के दिखाने लगता है आपका मोबाइल, और कहता है इतने तारीख को इतने बजे इस मॉल में आप यहां पर थे, तो उसका एडवर्टाइजमेंट देखते जाइए। इतना ज्यादा आपके घर के अंदर नहीं, आपकी आत्मा के अंदर तक एआई घुस गई है। उससे निजात कैसे पाएंगे? उसे निकल कैसे पाएंगे? इसीलिए आजकल लोग एक शब्द यूज कर रहे हैं, डिटॉक्स। हम डिटॉक्स किया हुआ नींबू डालकर, वो गाजर डालकर, वो सब डालकर पानी पी लेते हैं, लेकिन इससे डिटॉक्स नहीं हो पा रहा है हमारा। टॉक्सिक इफेक्ट ये जो क्रिएट कर रहा है, उससे हम नहीं निकल पा रहे हैं। इस पर भी रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए रिसर्च पूरे तरीके से एथिकल है। एथिकल के अलावा हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकने वाला होना चाहिए। इसलिए टूल जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यह देखना चाहिए कि ये जो एआई है या ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका हम कितना अल्टीमेट और ऑप्टिमम उपयोग कर पाते हैं और उसमें अपनी रचनाधर्मिता को बचा के रख पाते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है और इसको हमें बचाना चाहिए। इसलिए रिसर्चर होने के नाते मेरा आपसे निवेदन होगा, मैं अपने आप को भी मानता हूं कि हर दिन हमें कुछ ना कुछ अपने स्वयं से कुछ सोचकर लिखना चाहिए। चाहे आप रिसर्च के बारे में लिखें या किसी और के बारे में लिखें, पढ़ना तो ठीक है, लेकिन लिखना लगातार होना चाहिए। मैंने एक स्टूडेंट से कहा तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है, तो उसने मुझसे कहा सर पहले तो और भी अच्छी थी, अब लगातार काम जो है वो किस पे होने लग गया है, कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर ये दोनों अंगूठे जो हैं मेरे ऐसे ही रहते हैं। किसी दिन थम्स अप कहा जाए तो वो थम्स अप ही नहीं होंगे, क्योंकि हमारे बच्चे तो पूरा थम्स डाउन के आदी हो गए हैं। तो थम्स अप इसीलिए वो ज्यादा बिकता है क्योंकि वो थम्स अप रहता है। हमारे बच्चे तो इसी खेल के आदी हो गए, कभी बाहर में निकल के खेल भी नहीं पाए हमारे बच्चे। कभी वो गिल्ली डंडा कैसे खेलते हैं वो कभी खेल ही नहीं पाए आज के बच्चे। वो पिट्टूल कैसा होता है वो भी नहीं खेल पाए वो बच्चे। कुछ आगे चलकर वो ये भी नहीं जान पाएंगे कि नदी भी हुआ करती थी, वो भी सूख गई होगी, बारिश में आता होगा पानी। तो इन सारे चीजों को बताते हुए हमें उन बच्चों को उस ओर भी उन्मुख करने की जरूरत है। तो रिसर्च
इसीलिए हमें हर दिन लिखने की आवश्यकता है। कम से कम हमारा राइटिंग एबिलिटी हमारी बढ़ सकती है। हर दिन पढ़ें, जितना पढ़ें कम से कम उसका हम प्रेसी लिख पाएं। यदि एक पेज पढ़ते हैं तो उसकी प्रेसी 1/3 होती है, तो 1/3 भी यदि लिख पाएं तो बहुत अच्छा होगा। बहुत लंबा लिखना आसान है, लेकिन बहुत छोटा लिखना मुश्किल है। 10 वाक्य लिखना आसान है, लेकिन 10 वाक्य के विषय वस्तु को एक वाक्य में समाहित करना बहुत कठिन है। इसलिए हम कहते हैं ब्यूटी लाइज इन ब्रेविटी। तो ब्रेविटी हमेशा छोटी होती है। बच्चा जब छोटा रहता है, चाहे किसी का भी बच्चा हो, कोई भी जानवर का बच्चा हो, बहुत सुंदर रहता है वो, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं विकृत रूप आने लगता है हमें। और इसीलिए वर्ड्सवर्थ ने कहा था चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हमारे अंदर में बहुत सारे जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो मिस होने लगते हैं और हम मिसयूज करने लगते हैं एथिक्स का। लेकिन वो बच्चा जो रहता है उसमें एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। इसीलिए रिसर्चर को हमेशा बच्चा बने रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए और हर चीज से जानकारी लेती रहनी चाहिए। मुझे लगता है ये 2 दिन की कार्यशाला आपके लिए निश्चित रूप से एक उपयोगिता वाली कार्यशाला होगी। आपकी उपलब्धियों में ये अंकित होगी। दोनों महाविद्यालय, विप्र महाविद्यालय और विवेकानंद महाविद्यालय ने इसको आयोजित किया। इसके लिए दोनों महाविद्यालय बधाई के पात्र हैं और मिश्रा जी ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद उनका भी दूंगा। और आपने अपने दोनों श्रवणेंद्रियों को मुझे अर्पित किया इतने देर तक, इसके लिए आपका भी विशेष आभार और धन्यवाद। Thank you, sir, for your valuable thoughts.